Hello guys, welcome to this session. Today we are going to do MCQs on the National Human Rights Commission, that is NHRC, and State Human Rights Commission, that is SHRC. So if any person visit this channel for the first time, so you can subscribe the channel, and if you subscribe then don't forget to press the bell icon also. So let us start our session. The question is, when did the Protection of Human Rights Act came into force in India? A option is 1990, B option is 1991, C option is 1992, and the last option is 1993. So the right answer is option D, that is 1993. और आप पूरी complete date भी याद रख सकते हो, that is 12th of October 1993. Okay. Next question is, National Human Rights Commission is A option is statutory body, B is constitutional body, C option is multilateral institution, and D option is both A and C. The right answer is option D, that is both A and C. और एग्जाम में आपको मोस्टली ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर आएगा स्टैट्यूटरी बॉडी, बट यहाँ पर जो है डी ऑप्शन में दिया हुआ है दैट इज बोथ A and C. सो आपको इसको पिकअप करना है. Okay, here I mentioned that the National Human Rights Commission is a statutory body that was constituted by the Act passed in the Parliament, and the next point is the National Human Rights Commission is a statutory public body, the same thing, that is the statutory body which was constituted on 12th October 1993, जो हमने previous question में देखा, under the Protection of Human Rights Ordinance of 28 September 1993. ओके, सो आपको सिंपली याद रखना है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट इज ऑल्सो अ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? ए ऑप्शन इज दिल्ली, बी इज मुंबई, सी ऑप्शन इज अहमदाबाद, एंड डी ऑप्शन इज कोलकाता. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस was issued by the President in 1993? A option is Article 123, B option is Article 124, C option is Article 125, and D option is Article 127. The right answer is option A, that is Article 123. Next question is, what was the objective of the Protection of the Human Rights Act 1993? A option is better protection of human rights, B option is to constitute Human Rights Protection Commission, C option is to constitute Human Rights Protection Commission in the state, and last option is all of the above. So the objective of this Human Rights Act 1993 is all of the above, that is to protect the human rights and also to establish the Human Rights Commission and also to establish the Human Rights Commission in the state. जो स्टेट में होते हैं उनको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है, और जो पूरे इंडिया लेवल पर काम करता है उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज? ए ऑप्शन इज 3 ईयर, बी इज 4 ईयर्स, सी ऑप्शन इज 5 ईयर्स, एंड डी ऑप्शन इज 6 ईयर्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 3 ईयर्स. सभी का जो जितने भी मेंबर रहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उनका जो टेन्योर रहता है चेयरमैन और अदर मेंबर्स, वो रहता है 3 ईयर और जो है 70 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, राइट. अगर यहाँ पर जो है ऑप्शन में 3 ईयर ना दिया हो तो आपको पिकअप करना है 5 ईयर्स. इसको जो है रिसेंट जो लास्ट टाइम अमेंडमेंट हुई थी एक्ट में 1993 में, तब इसको चेंज किया गया था 5 ईयर से 3 ईयर तक, राइट. Next question is, according to the National Human Rights Commission Act 1993, who amongst the following can be its chairman? A option is any serving judge of the Supreme Court, B option is any serving judge of the High Court, C option is only a retired Chief Justice of India, and D option is only a retired Chief Justice of a High Court. The right answer is option C, that is only a retired Chief Justice of India, right. Next question is, who is not a member of the committee for the appointment of the chairperson and members of the National Human Rights Commission? A option is Speaker of the House of People, B is Chairman of the Council of State, C option is Leader of Opposition in the House of People, and D option is Leader of Opposition in the Council of State. अब देखिए, जो चेयरमैन और मेंबर्स रहते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो जो उनकी अपॉइंटमेंट होती है वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट. पर जो उनको रिकमेंड करता है तो उसके लिए कमेटी बनी होती है, और उस कमेटी में जो है 6 पर्सन होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन.
राइट। सो उस कमेटी में कौन सा पर्सन शामिल नहीं होता, सो आपको वो बताना है, राइट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर बात हो रही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। अगर बात हो रही होती स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो वहां पर जो है चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट उसको जो है शामिल किया जाता है, राइट। अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है इनको जो है इंक्लूड नहीं किया जाता उस कमेटी में, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो कमेटी होती है उसके जो उसमें टोटल 6 मेंबर रहते हैं और जो हेड लीडर रहता है उस कमेटी का वो रहता है प्राइम मिनिस्टर, राइट। जो अदर 5 मेंबर रहते हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ द पार्टीज एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, राइट। So the next question is, which of the following statements is not correct about the National Human Rights Commission? So A option is, it was established in 1993. B option is, in the cases of the human rights violation, the commission has no right to punish the culprit. C option is, the chairman and the member of this commission are appointed by the Supreme Court of India. And D option is, the commission sends its annual report to the central government and the state governments. नाउ जस्ट ट्राई टू गिव द राइट आंसर। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो मैंने आपको प्रीवियस ही बताया दैट कि जो चेयरमैन एंड जब मेंबर ऑफ द कमीशन रहते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, मीन्स ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ओके हियर आई मेंशन दैट जो मैं आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ कि जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी, जिस कमेटी को हेड कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट। Next question is, in which section of the Human Rights Protection Act 1993 is public servant defined? A option is section 2, B is section 3, C option is section 2H and D option is section 2M. The right answer is option D, that is the section 2M. Next question is, which of the following is not the function of the National Human Rights Commission? A option is to interfere in the proceedings related to the human rights violation case pending in the court. B option is protecting the human rights of prisoners. C option is to provide economic compensation to any human rights violation victim. And D option is promoting research in the field of human rights. The right answer is option that is to provide economic compensation to any human rights violation victim. This is not the function of Human Rights Commission. Next question is, when changes have been made in the National Human Rights Commission Act? A option is 2001, B is 1999, C option is 2006 and D option is 2016. तो जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है का एक्ट था ना, उसको जो है फर्स्ट टाइम लाया गया था 1993 में, सो उसको कब जो है चेंज किया गया था? तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इट वाज अमेंडेड इन 2006 एंड देन आफ्टर दैट 2019। तो उसको 2006 और उसके बाद जो है 2019 में जो है उसमें चेंजेस किए गए थे, पर यहाँ पर ऑप्शन में हमें 2006 मिला, सो हम इसको पिकअप करेंगे एज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द NHRC? A option is any individual, B is any group of individual, C option is any organization, D option is all of the above. The right answer is option D, that is all of the above. कोई इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑन द वायलेशन ऑफ द राइट्स वो फाइल कंप्लेंट कर सकती है विद द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? A option is Justice K.G. Balakrishnan, B option is Justice S. Rajendra Babu, C option is Justice A.S. Anand and D option is Justice P. Satsivam. The right answer is option D, that is Justice P. Satsivam. Here I mentioned all the important points which related to the National Human Rights Commission. Most of the we covered in the form of MCQs. तो आप एक बार यहाँ पर जाकर भी देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर आपको कुछ डिटेल में जाना है। सो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट वन है उनको हम जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993 एंड इट वाज अमेंडेड इन 2006 एंड देन इन 2019 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ NHRC is located in न्यू दिल्ली, राइट। इसको याद रखिएगा। एंड फर्दर इज द कॉम्पोजिशन, जो टोटल मेंबर रहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में वो कितने रहते हैं? तो एक चेयरमैन रहता है,
राइट, जो हेड होता है उस कमीशन का 5 आर द फुल टाइम मेंबर एंड 7 आर द डीम्ड मेंबर्स, राइट। और जो चेयरमैन रहता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो रहता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन। इसको जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी, और उस जो कमेटी का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है, और बाकी जो अदर मेंबर्स देख लीजिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मींस लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा, एंड जो है यूनियन होम मिनिस्टर, राइट, ये इंक्लूड रहते हैं। बाकी देखिए टेन्योर है, ये इंपॉर्टेंट वन है तो याद रखिएगा, 3 इयर्स रहता है, और जो है और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। और जो इनकी मेंबर्स या चेयरपर्सन होता है कमीशन का, उसको रिमूव भी कौन करता है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल बोथ डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। अब यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, राइट। सो क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से देखिएगा। A option is president, B is governor, C option is chief justice of high court, and D option is none of the above. The right answer is option B, that is governor. अब यहाँ पर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा दैट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात आएगी, अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो इनके जो मेंबर और चेयरपर्सन दोनों को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट। अगर रिमूवल की बात आएगी तो इनके जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे इनको रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। Next question is, which one of the following is not the function of the State Human Rights Commission? A option is inquire suo motu the violation of human rights, B option is visit any jail, C option is review the protection of human rights, and D option is to punish for the violation of human rights. The right answer is option D, that is to punish for the violation of human rights. Now we will see some important points which are related to State Human Rights Commission. तो अब देखिए जो स्टेट कमीशन होते हैं उनकी जो चेयरपर्सन और मेंबर्स रहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। जैसे हमने वहां पर कमेटी देखी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 6 मेंबर की, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है 6 मेंबर की कमेटीज रहती हैं जो गवर्नर को जो है रिकमेंड करती है उन पर्सन के नेम, राइट। सो इसका जो भी हेड होता है उस कमेटी का वो रहता है चीफ मिनिस्टर, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहता था, यहाँ पर जो है उस पर्टिकुलर स्टेट का जो है सीएम उस कमेटी का हेड रहेगा। अब बाकी जो 5 मेंबर रहते हैं वो सेम रहते हैं, बट आपको स्टेट लेवल पर उनकी जो है बात करनी है। वहां पर यूनियन होम मिनिस्टर रहते थे, यहाँ पर स्टेट होम मिनिस्टर रहेंगे, और स्पीकर ऑफ लोकसभा वहां पर होता था, अब यहाँ पर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मींस स्पीकर ऑफ विधान सभा, राइट। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड द अदर जो मेंबर रहता है वो रहता है चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। और जो टेन्योर रहता है चेयरमैन एंड मेंबर्स का वो सेम रहता है, दैट इज 3 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स, राइट। और ये पॉइंट मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट इज ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ दैट द अपॉइंटमेंट डन बाय द गवर्नर, बट जो रिमूवल रहता है वो रहता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Okay, the fourth point is that the commission shall submit an annual report to the central government and to the state government concerned. जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रहेगा वो अपनी जो रिपोर्ट रहेगा एनुअल रिपोर्ट वो सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन रहता है इट सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द दैट कंसर्न गवर्नमेंट, राइट। और जो कंपोजिशन रहती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की तो वो रहती है दैट इज चेयरपर्सन रहता है एंड जो अदर जो है 2 मेंबर उनके साथ जो है एज अ टीम में काम करते हैं, right? So question is, which one of the following is not a constitutional body? A option is the Human Rights Commission, B is Finance Commission of the state, C option is the Lok Sabha Secretariat, and D option is the Finance Commission at the center. So the right answer is option A, that is the State Human Rights Commission. Because जो Human Rights Commission होता है ये किस तरह की बॉडी है, it is a statutory body. So काफी अच्छे से याद रखिएगा, ये एक important question बनता है। So with this guys, I end up today's session. I hope that you love the content. So please give a 1 like to video. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.